completed in the previous class till this slide, right? Categories of AWS services. Or this one also we have done. This slide, simple solution example. No, sir. No. Okay. So just have a look. This type of scenario you used to perform in the lab. You have done some of the lab, but till now we haven't got this type of requirement to perform in the lab. But in future, there will be some lab which will be based on this particular example. So if you see the on the screen, generally what you do, like when you log into the management console window, so you used to land it to the console of AWS, right? Generally, whenever you'll go for the lab. So the same thing here also, like you are the one of the user on the AWS cloud platform. And when you log into the AWS, so there will be a one cloud environment, AWS cloud environment. So if you see that one of the, the big box out of this. So this is our AWS cloud. Under it, there will be a, virtual private cloud that is called as a VPC. And this VPC is a part of your networking and content delivery services. So there will be multiple, networking services. Out of it, one of is VPC, Virtual Private Cloud. And uh, under the VPC, suppose you are that is your EC2, Elastic Compute Cloud. So that is one of the Elastic Compute Cloud services. If we'll take an example of that, so it is a one of the server-based compute service. So that's why if you see on the screen, like dotted line is showing to the compute, because it's a category of compute service EC2. And under the EC2, suppose you have a server, and server required generally two things, mainly two things. What are the two things server required, guys? If anybody will ask you, what are the minimum two things is required? There will be so many things will be required to compute to process the server. Each and everything related to the hardware, software, and everything will be required. But mainly, if you'll focus on the cloud environment, so mainly like two things is very important for the server. One is the database, and another is your storage, right? So the database is here. They have shown in this picture. If you see, like the DynamoDB. So one of the database services on AWS Cloud Platform. There will be a multiple database services which we have already been discussed, right? So one of the database is called DynamoDB. Can you tell me the some other database service name, guys? Can you name it? Some other database services? Anyone? MongoDB, RDS. SQL. Yes, RDS. DynamoDB itself is there in on the screen. Any Yes. Redshift. Redshift? MongoDB, okay. Glacier. Yes, Amazon Glacier. So The these are Redshift. Redshift is also one of the database service. So there are multiple AWS database services which are available on the cloud platform. AWS, especially we are talking about the AWS. So there will be different database services. Like you all know that one of is DynamoDB, which you can see it, which are connected to the your compute services like EC2 instance. And another, if you see another storage service, that is S3. S3 that you have already done the challenge lab on this. So S3 is one of the simple storage service. There will be a multiple storage services which I have already told in the previous class. You can go through all the storage services, EBS, EFS, and all. So mainly we focus on this course like S3, EBS, and EFS. Okay, EFS lab also you have done, I think, in the previous class. Elastic file system, right? Yes, sir. So I hope you have clear on this. There will be a categories of multiple services on the AWS platform, and one of the categories is storage. And in the storage, there will be also a different types of storage. So one of is like your S3. So all this, if you see this this example where everything is connected to one another, like if you see like EC2 is connected to DynamoDB,
and EC2 is also connected to S3 because it's one of the server you can say, and the server required the database and the storage. So we are connecting this server to the virtual database services and virtual storage services. Let's have a look. There is a one question. You have to answer me. Those who know the answer, just reply me in the chat. Okay. Don't tell here. You just, if you know the answer, just read that this question, what it should be in the question mark. Like the services you select depends upon your business goal and the technology requirement. So there will be a services like AWS EC2, AWS Lambda, Elastic Beanstalk, Amazon Lightsail, AWS Batch, AWS Outpost, Fargate, EKS, Elastic Kubernetes Services. EKS is Elastic Kubernetes Services. You can write it down in a notebook. ECS is a container-based service, or VMware Cloud, you know that already. So all those, if you see the services, these are the part of which category of services. So these are the services that is fine, EC2, AWS Lambda and all. So this is the, one of the category of AWS services, and it belongs to which category? That is the, the question mark which is asked over here. You have to tell that what is the categories. Just reply me in the chat, all of you. Just reply me immediately, all of you in the chat. What should be your answer? कोई भी गलत नहीं लिख रहा है, सब लोग को पता है. दैट इज ग्रेट. इसका मतलब सबको आंसर पता है. वेरी गुड. इसका मतलब तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो. गुड गुड. So it is a compute service. Great, great. Okay, let's move to the next one. Now this slide is very important. Like in the previous slide, I have told you like one of the slide where the category of services has been mentioned. And related to that slide only, this slide is also there, which is equally important. So you all have to write it down in your notebook, because this slide will be repeated in the multiple, the topic which we'll discuss in coming classes, where multiple time I'll ask you, tell me about storage service, what are the category of storage service, database service, networking service, cost management service, management governance service, security compliance, and compute service. So just now you have answered like this is the compute service. How we are able to answer? Because you have gone through previously, we have also seen like compute and all. So these are the, the services belongs to EC2 and all, Lambda, Fargate, Outpost, ECS, EKS, all belongs to the compute. So if you'll remember this, it will really help you to pass the even global exam as well as your course completion exam. So if you are doing cheating, then that is not going to help you in future. Remember this. I know that many people, this course completion exams and all, these are not a proctor base. So you are using GPT and all, and you are searching the answers and getting the full marks. So that will not help you in future. Remember this. When you'll go for the global certification exam, so on there you have to, at any cost, you have to perform. I mean, if you do cheating, you will be totally, blocked on that particular point of time, and you will not be allowed for further in future to give that particular exam. So they will blacklist you from the entire, AWS, all those whatever the exam that they in future, if you plan to give, they will not allow you, because there is a policy. If any point of time, if any student will be caught by the, in a global exam, whether you are going for the CCN exam or AWS Google exam or Azure or Red Hat exam, any type of global exam, if you're giving it and you will be caught like doing cheating, so they used to blacklist you for, in the future, you can give those type of exam. So that is, it will create a bad impact. So you should, prepare in such a way that like you should not require any kind of, help of anything, right? So just look at here. If we'll take an example of compute service, so there are different compute services. Just now you have seen in this example, right? So I don't need to discuss this. Yeah, I can tell you some of the full form. You can write it down. EC2 is Elastic Compute Cloud. This is a server-based services. Someday I will discuss, on the serverless and server-based compute service. Today only, if I'll get time,
we will discuss on that, because many time I'm telling you some of the services are server based service, some are serverless service. So you should know the differences, like what is server based and what is serverless, right? And nobody has asked till now like this question. You could have asked me like, sir, you are sometime you are telling server based, sometime you are saying serverless. So what is the difference between both? You could have asked me, but anyhow, if you're not asked, but I will answer this question because it's one of the important questions. Anybody can ask if you tell this, AWS Lambda and EC2 is a example of server. EC2 is example of server-based service, and Lambda is serverless service. So if they can ask you, like anybody can ask you, just tell me difference between serverless and server-based services, right? So you should know about that. Then coming to the next, the Elastic Beanstalk. Then we have auto scaling, EC2 auto scaling. Then ECS is the Elastic Container Services. Then we have Amazon EKS is one of the Kubernetes service. Elastic Kubernetes service, K for Kubernetes. This service is, last few years ago, they have launched on the cloud platform. Kubernetes technology, when it's launched, after that, they have planned to. Kubernetes is not a part of AWS, but this type of services they have added on the cloud platform. They're like a Docker services, which help you to create a container, right? Container-based service. So earlier, when the DevOps engineers, they are using container, Kubernetes services, and these type of things also should be implemented on cloud. So most of the cloud service provider, they are using those services on the cloud environment as well, like a container-based service. So you have the ECS. ECS is one of the container-based services. You can see here. And Kubernetes EKS is a Kubernetes service. This is a container registry, ECR, right? And this is your Fargate is another one of the compute service, right? So you can write it down. This all the list of compute service, storage service, database. Whenever I'll ask, like today I have asked, database services ka naam batao. So some student has answer like sir RDS, DynamoDB, Redshift. Someone has told. Someone has said like Aurora. Someone has Amazon Glacier, right? So all are the storage service. So you can write it down in your notebook. Sorry, Glacier, Redshift, Aurora, and all, which Glacier is a part of storage service. But if you will take an example, Redshift, Aurora, RDS, that is the category of database service. So remember, this both are the different things, guys. Database I have already discussed in previous class, like difference between database services and storage services. So storage service name, if someone will ask you, so you have to say that S3 Glacier. Glacier is not, as someone has told in the database services like AWS Glacier. Glacier is a part of S3 Glacier is the part of your storage service, not directly on the database service. ECS, EFS, you know that. EBS, Elastic Blocks storage, and Elastic File System storage. EFS, simple storage, you already know that. So all of the part of storage service. Then database category, Redshift, Aurora, DynamoDB, and RDS. Remember this, all these services. Minimum 3 to 4 service you have to remember. Next, networking and content delivery services, VPC. Many time we use VPC. That is a part of networking service. Then Route 53, CloudFront, and load balancing. That is called as ELB. So ELB, remember this, guys. ELB, VPC, Route 53, and CloudFront. These all are the category of content and networking services, content delivery and networking services. Now, if we'll come to Raj. Management and governance services. Just have a look. Management governance services like a trusted advisor. You have a CloudWatch. That is a kind of monitoring service. Then CloudTrail, we have well architected tools, auto scaling, CLI, config management console. So these are the services that is used for the security purpose as well. But if you see, there is a separate services for the security, but this is the governance services. Remember the management and governance services, which ensure your that all the service which you are containing from the cloud, that should be 24/7. It should be available to the client, and all the monitoring, all the maintenance, everything should be done from the service provider sides.
So for that, assuring all those things, they uses multiple tools and the services, the name which is listed over here, you can see. And now if you see the cost management services, we can, like when you consume some service, like suppose you have consumed EC2, then what will be the bill of that? How many days you are consuming this compute service? How many days that your server is running? Then what are the size of the what are the capacity of your storage, and what are the size of RAM, and then you have CPU. What are the core of the CPU? How many virtual CPU you are using it for that particular your server, maybe EC2 instances if you are using it. So for that case, they from the backend they calculate all the bill and all. What will be the cost? They generate a report, right? And in yearly basis and the monthly basis, if you have that kind of policy to pay that particular amount. So they generate all those things through this particular through this category of service, cost management services. So their job is to create the bill and all, and from the back end at the end of the year, what should be the budget, and what will be the total bill for your particular organization. Suppose Capgemini is taking service from the AWS. So yearly basis, suppose they are paying it. So at the end of the year, how much cost it is for that particular service? Maybe $1 billion or $2 billion, whatever amount it will be. So accordingly, they have to pay to the service provider. So that thing will be done under this cost management services. You can write it down, guys, all the name of the services. I'll give you 5 minutes to write. इसको लिख के रखो कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होने वाला है. फोटो लेने से नहीं होगा तुम लोग को, स्क्रीनशॉट लेने से नहीं होगा. मैं तुम लोग एडवाइस कर रहा हूँ कि लिखो, कॉपी में लिख के रखो. How many of you are writing? Let me check. Raise your hand, those who are writing it right now. गाइस तुम लोग रेगुलर क्लास आओ, नहीं तो बाद में फंस जाओगे. वजह से सिस्को वाले बच्चों का हुआ है ना अभी हाल. बहुत सारे बच्चों का इलिजिबिलिटी से हटा दिया है. वही हाल तुम्हारा, तुम लोग का भी हो जाएगा आगे, जब कभी कोई कैंपस ड्राइव अगर हुआ और मेरे से अगर डाटा मांगे कि बच्चे कितने ट्रेंड हैं और उन लोग का लिस्ट चाहिए, तुम लोग का भी जो रेगुलर नहीं होगा ना, नाम ही नहीं दूंगा, याद रखना. इसलिए रेगुलर आओ क्लास, और असाइनमेंट सबमिट करो, क्लास वर्क सबमिट करो, जो मैं बोल रहा हूँ ढंग से करो. नहीं तो बाद में जब शॉर्टलिस्ट नहीं होगे, जितना भी फोन करोगे फिर फोन उठाने का कोई मतलब नहीं बनता. जैसे अभी सिस्को के बहुत सारे बच्चे लोग बार बार मेरे को मैसेज कॉल करे जा रहे. हम तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं. आप लोग टाइम से कोई चीज नहीं करते हो, तो उसके लिए एंड में अब सोचोगे कि नहीं मेरे से ये गलती हो गया. आप सुन लीजिए. तो मैं तो कॉलेज का हूँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बाहर वाले नहीं समझते ना. बाहर वाले उस चीज को नहीं तुम्हारा सुनेंगे. इसलिए तुम लोग देख रहा हो कि रेगुलर क्लास भी बहुत सारे बच्चे नहीं आ रहे. वी हैव सीन प्रीवियस वीक दैट योर अटेंडेंस, you guys are not regular to the classes, many student. And when if there will be a requirement, and as you all know that every time I'm telling you guys, nowadays your placement will be totally skill based, fully skill based. Nobody is going to hire you if you are not having the some technological knowledge which is currently using in the industries. If you don't have real world experience, if you don't have real world hands on experience, and you are not
touch with the current technology which is used in the market. So it's forget about the job then. Still, I'm seeing the attendance is very, very, सर very. AWS KMS का फुल फॉर्म बताना मुझे। हाँ देखो EKS क्या बोल रहे हैं? फिर KMS सिक्योरिटी आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस के अंडर। AWS KMS ये जो होता है तुम्हारा, ये मैनेजमेंट सर्विस के अंदर आता है। की मैनेजमेंट लिख सकते हो। इनक्रिप्शन वगैरह जो होता है ना, उसको ये करता है, डील करता है ये सर्विस। इसलिए तो सर अगर सिक्योरिटी, हेलो इसलिए देखो सिक्योरिटी सर्विस सर में अगर आ गया है, क्योंकि इनक्रिप्शन वगैरह जो टेक्निक यूज हम करते हैं डाटा को हाइड करने के लिए थर्ड पार्टी से, कि कोई भी अगर थर्ड पर्सन या कोई हैकर वगैरह जो है स्टील करने की कोशिश करेगा इंफॉर्मेशन, तो उसको वो कोड जो होता है मास्क हो जाता है, जो कि समझ नहीं पाएगा तुम्हारे डाटा को, तुम्हारे मैसेज को भी समझ नहीं, इनक्रिप्ट हो जाएगा ना डाटा। तो इसके लिए यूज किया जाता है KMS सर्विस क्लाउड पे। यस टेल मी। Who was asking something? Someone was asking something. सर ये स्टडी का जो असाइनमेंट था वो सबमिट नहीं कर पाए थे, कंप्लीट तो आज कर कल ही हो गया सकते हो, था। आज कर सकते हो, मैं उसको एक्सटेंड कर दिया हूँ, मतलब मैं वहाँ पे ओके सर। ऑफिशियली नहीं किया, बट तुम लोग को दिया हूँ, एक दिन तुम लोग का एक्सटेंशन मिला है। ठीक है सर। हेलो सर। हाँ हाँ। सर आपने दो दो क्लासरूम बना रखा है शायद, क्योंकि मैं सर फर्स्ट डे से सारे असाइनमेंट दे रही हूँ, तो क्लास असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 एक क्लासरूम में सबमिटेड दिखा रहा है और एक क्लासरूम में मिसिंग दिखा रहा है। उससे ऐसा भी लीव कर कुछ है? जाओ ना। तुम लोग 2 क्लास ज्वाइन क्यों किए हो? मैं तो 1,000 से ज्यादा बच्चे हो गए थे क्लास में, तो उसमें वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने एक और क्लास बनाया। तो तुम लोगों ने दोनों क्लास क्यों ज्वाइन किया? कोई एक ही क्लास ज्वाइन करना है, ग्रुप सर 1। तो पहले, हाँ पहले वाले में मैंने सारा सबमिट किया, तो वही वाला ज्वाइन रखती हूँ, उसको लीव कर हाँ देती हूँ सर। हाँ, लीव कर दो। ओके ओके। तुम लोग खुद अपना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। मैं वो जब सर ग्रुप बनाया, फर्स्ट क्रिएट असाइनमेंट किया अगर था, 2-3 दिन वहां पे लेट सबमिट मैसेज, किए तुम थे। लोग मैसेज क्यों नहीं पढ़ता है ठीक से? पता नहीं क्यों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लोग कुछ मैसेज को रीड ही नहीं करते हैं, बस सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। अरे बाबा, तुम देखो कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या प्रॉब्लम था, उसलिए वो ज्वाइन किया। तुम भी उसी चीज में दूसरे को फॉलो कर करके ये कर रहे हो, गलत सलत कोई भी स्टेप ले लोगे ऐसे करके। मैंने मैसेज में लिखा था कि दोज हु हैव ऑलरेडी ज्वाइन दे डोंट हैव टू फॉलो दिस ग्रुप, only those who are remaining people they have to join this group. But you guys had not read the message and immediately you have joined. Link you have seen, just immediately फटाफट रजिस्ट्रेशन का एक लिंक आता है, तुम रजिस्ट्रेशन कर दिया, फिर भी रजिस्ट्रेशन कर देता है तुम लोग। वो पढ़ता नहीं है कि क्या चीज का ये रजिस्ट्रेशन का है, ट्रेनिंग है, प्लेसमेंट है, क्या है। वो सब चीज देखो, नहीं तो अभी अभी तो बस प्लेसमेंट जस्ट स्टार्ट हुआ है तुम लोग का। अभी कुछ सालों, मतलब कुछ महीनों बाद देखना तुम लोग का कैसे, ये सब की वजह से कितना ज्यादा तुमको अफसोस होगा। रिजेक्ट हो गए बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे जगह पे शॉर्टलिस्ट नहीं हो गए, फिर वहां पे अफसोस मना के कुछ नहीं होगा। इसलिए पढ़ो, पूरा क्लैरिटी लो, पहले नोटिस को पूरा पढ़ो। कोई मैसेज अगर तुम लोग सेव करो नंबर, पहले जो एडमिन होते हैं, जो ग्रुप के एडमिन है, उनका मैसेज, अगर कोई भी ग्रुप हो, कैरियर स्कूल का हो, ट्रेनिंग प्लेसमेंट हो, या ट्रेनिंग का कोई ग्रुप हो, हम लोग का भी ट्रेनिंग जैसे क्लाउड का चल रहा है, इसका ग्रुप हो, तो एडमिन का जो मैसेज है उसको पहले मार्क कर दो, वहीं पे स्टार में रखो कि वो मैसेज को तुमको पहले रीड करना। बाकी जो जनरल मैसेज आ रहा है उसको इग्नोर करते जाओ। लेकिन जो टीचर है या जो भी प्लेसमेंट से, जो प्लेसमेंट ऑफिसर हुए या डीन हुए प्लेसमेंट के, डायरेक्टर हुए कैरियर स्कूल के, तो इन लोग का जो मैसेज आता है उसको सीरियसली लो, क्योंकि कुछ ना कुछ होगा उसमें। बाकी जनरल मैसेज को इग्नोर करो। तो तुम लोग क्या करता है, जो एक्चुअल मैसेज उसको इग्नोर करेगा, बकवास वाले मैसेज को उसको रिप्लाई देगा वहां पे। ऐसा नहीं अरे सर करना। फॉर्म तो आप लोग सर सब भर देते हैं, बस शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होता। हाँ हाँ, फॉर्म आएगा, एक बार फॉर्म आएगा उसको, सब उनका क्या क्राइटेरिया है क्या नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, सब फिल कर दिए। उनका स्किल क्या चाहिए, आप उसमें फुलफिल हो रहे हो नहीं, आप सीवी आपका क्या है, उसके अपडेटेड सीवी जो आपने डाला है, सीवी भी शेयर होता है कंपनी को, वो लोग उसमें आप फुलफिल हो रहे हो नहीं, उसके बाद तो फिर रिजेक्ट करेंगे, फिर शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करेंगे तुमको, फिर लास्ट में तुम दौड़ोगे पीएनपी। पीएनपी क्या कर सकता है उसमें? ये सब चीज को ध्यान में रखो। और हर बार रजिस्ट्रेशन इन हाउस रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ये भी ध्यान देना।
बहुत सारे ऐसे रजिस्ट्रेशन है जो डायरेक्ट कॉर्पोरेट तुम्हारा रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड करती है। वहां पे वो ध्यान, अगर इन हाउस होता है तो चलो हमारे हैंड में है, हम कॉलेज के बच्चों का फेवर में हम जितना हो सके कर सकते हैं। लेकिन जो कॉर्पोरेट के तरफ चला गया तुम्हारा रजिस्ट्रेशन, तो वहां पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। वहां पे डायरेक्टली वो गाली करेंगे, बोलेंगे कि जो बच्चे का पता नहीं है कि क्या फिल करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो बच्चे को हम नहीं लेंगे, हमारा हमको नहीं चाहिए वैसे ऐसे बच्चे। जैसे अभी सिस्को का जो रजिस्ट्रेशन हुआ, अभी करंट मेरे पास एग्जांपल, इसलिए मैं बार बार सिस्को नाम ले रहा हूँ क्योंकि अभी 2 दिन पहले ये सब इंसिडेंट हुआ है बहुत सारे बच्चों का। तो वहां पे जब वो लिंक जब उसने शेयर किया, सिस्को का वो लिंक था, वो हमारे इन कॉलेज का नहीं था कि हम गूगल फॉर्म में कलेक्ट करके उसको डाटा दे रहे। वो लोग डायरेक्टली दे वर टेकिंग दैट ऑल द रिकॉर्ड ऑफ यू स्टूडेंट that in their platform, not they are giving the chance to the college that they will collect the data and they will share with the company, because they have all the access of the student. They are using NetAcad portal, and on there they have all the access, because this is the company which is having all the control from their side. सर इमीडिएटली देर वहां पे चेक कर रहे हैं। अब वहां पे आप लोग देखो कितने सारे ऐसे बच्चे हैं कि कॉलेज का नाम में, मेरे को ऐसे भी लिस्ट आया है बच्चे को, उनको भी रिजेक्ट किया गया, वो भी एलिजिबल में नहीं आए हैं। कि जिन लोगों ने कॉलेज का पूछा गया कि आपका कॉलेज का सिटी बताओ, तो सिटी बताया भुवनेश्वर, ठीक है। वो कौन सा स्टेट में बिलोंग करता है, स्टेट का लिस्ट था, तो वहां पे उसने मार दिया झारखंड, किसी ने मारा, किसी ने छत्तीसगढ़ मारा है, किसी ने महाराष्ट्र मार दिया है। तो वैसे बच्चों का जो लिस्ट आया वो पहले ही रिजेक्ट कर दिया, बोला कि जो बच्चे का खुद स्टेट के बारे में नहीं पता, सिटी नहीं पता, कॉलेज कहाँ पढ़ रहे नहीं पता, वैसे बच्चे हम ये इतना बड़ी कंपनी में हम उनको नहीं लेंगे। उनको तो पहले हटाओ, क्योंकि वो ऐसे भी एग्जाम देके भी वो पास नहीं करेंगे वैसे बच्चे। सर हम लोग कॉलेज से जो फॉर्म अप्लाई करते हैं उसमें भी रिज्यूमे देखा जाता है। नहीं, जो कॉलेज का जो होता है वो तुम ऑलरेडी तुमने अपना रिज्यूमे अपलोड कर दिया होगा पहले से, वो लोग का रहता है डाटा कि आप अपलोड करो सीवी। जब बोला जाता है अपलोड करो तो आप अपलोड कर देते हो, बार बार सीवी अपलोड करने के लिए नहीं बोला जाता है। जो पहले से तुम दिए हो उसको हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। बीच में अगर कभी हुआ कि कंपनी बोली कि नहीं मुझे लेटेस्ट सीवी चाहिए, मुझे करंट सीवी चाहिए, बच्चों का स्किलिंग वगैरह कुछ किया है तो उसका भेजो, तो वो उस केस में आपको इंफॉर्मेशन जाता है प्लेसमेंट से कि आप लोग अभी अपलोड करो सीवी, करंट सीवी, तो उस समय तुम लोग अपलोड करोगे। जो जिस कंपनी में बोलेगा कि नहीं पुराना से ही हमारा चलेगा, काम चलेगा, उसका डाटा दे दो, तो उसमें पुराना जो तुम दिए हो उस वही तुम्हारा शेयर होगा। अगर तुम्हारा फिर एचआर राउंड है, वहां पे मांगा सीवी आपका, तो उस समय फिर से डाल दो सीवी, अपना अपडेट करके दे दो, वो भी कर सकते हो। तो ज्यादातर वही होता है कि एंड में जब एचआर राउंड में जाओगे ना या टेक्निकल राउंड में, तो वहां पे वो लोग जनरली ऑनलाइन भी होता है तो मांगते हैं वो सीवी, फिर से एक बार और मांगेंगे सीवी आपका, तो वहां पे दे दोगे तो उनके पास अपडेटेड रहेगा। उस चीज को ध्यान में रखो। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आई होप यू ऑल हैव रिटन, नाउ वी कैन प्रोसीड। यस टेल मी। सर So ECS and सर अब difference both are continuous. हाँ, ईसीएस जो है और ईकेएस दोनों अलग है। क्या तुम पूछ रही है? So difference means बस ये EKS Kubernetes को यूज करेगा वैसे तो नहीं। हाँ, ईकेएस जो है वो कुबरनेटिस सर्विस को यूज करता है। मतलब देखो कुबरनेटिव सर्विस क्या है बेसिकली, एक होता है कंटेनर सर्विस, कुबरनेटिव्स एंड डॉकर। ये तीनों में मैं इसका क्लास में एक दिन लेने वाला हूँ, बट फिर भी अभी तुम पूछ दिया तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि थोड़ा आइडिया मिल जाएगा तुम लोग को। Yes. देखो कंटेनर सर्विस जो है, हम लोग जैसे बहुत सारे आजकल क्या होता है कि अगर तुम ऑन प्रीमाइसेस में वीएम वगैरह यूज कर रहे हो तो तुम वर्चुअल मशीन तुम लोग बनाते हो, वो क्या करते हैं अननेसेसरी स्पेस जो है ऑक्युपाई कर लेता है। अगर आप यूज करो वीएम को या नहीं यूज करो तो वो उतना स्पेस लेके वो रखेगा, उससे क्या होगा आपका सर्वर वगैरह जो होता है स्लो होने का चांसेस रहता है। लेकिन ये कंटेनर जो होता है ना वो बहुत लाइट वेट होता है। ये क्या करता है, जो भी एप्लीकेशन और उसके जो भी लाइब्रेरीज वगैरह होंगे वो सबको जब यूज नहीं करता ना तो रिलीज कर देता है। तो उससे क्या होता है लोड नहीं पड़ता सर्वर पे। जैसे मान लो 5 कंटेनर तुमने क्रिएट किया डॉकर के हेल्प से। डॉकर एक कंपनी है जो कि हेल्प करता है आपको कंटेनर क्रिएट करने में। तो तुम लोग नाम सुने होंगे डॉकर का, कुबरनेट का नाम सुने होंगे, कंटेनर का। ये सब क्या है बेसिकली, ये सब जो है तुम्हारे डेवलप जो लोग मतलब डेवलपमेंट ऑपरेशन में काम करते हैं, खासकर जो डेवलप इंजीनियर वगैरह हैं, तो उन लोगों को, या अगर मान लो कोई डेवलपर है, डेवलप इंजीनियर तो छोड़ो, नॉर्मल डेवलपर भी है अगर, तो ज्यादा करके लोग ये जो है टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, डॉकर कुबरनेटिस और तुम्हारा कंटेनर क्रिएट करते हैं, क्योंकि इससे हेल्प ये मिलता है कि हम लोग जो है कोई एप्लीकेशन को डेवलप अगर कर रहे हैं, तो मैंने एक कंटेनर बनाया, उसमें मैं अपना प्रोग्राम वगैरह जो भी है मैं रन कर रहा हूँ, मैं उसको कोड कर रहा हूँ, मैं एप्लीकेशन अपना अपडेट करते जा रहा हूँ। मेरा फ्रेंड है मेरे ही प्रोजेक्ट पे, वो भी काम कर रहा है, वो भी कुछ पार्ट वो भी कर रहा है, दूसरा फ्रेंड है वो भी कर रहा है, सब एसोसिएट हैं एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अपना अपना एक एक कंटेनर बना के रखे हैं।
अब जब एक टाइम में मान लो एक काम कर रहा है, दूसरे टाइम में कोई कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसका कंटेनर जो है वो सारे डाटा सब कुछ रहेगा, बट वो अगर यूज में नहीं है ना तो वो रिलीज कर देगा, मेन मशीन के ऊपर लोड नहीं देगा वो। तो इसीलिए बोला जाता है कंटेनर एक लाइट वेट होता है कि जब रिक्वायरमेंट पड़ेगा तब वो प्रोसेस करेगा, जब नई रिक्वायरमेंट में आपके जो भी एप्लीकेशन है या ओएस वगैरह अगर उसने होस्ट ऑपरेट ऐसे भी उसका जो है वो ज़्यादा लोड नहीं देता है होस्ट हार्डवेयर पे या होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, वो खुद का अपना लाइब्रेरी से सब कुछ क्रिएट करता है। वो जो होता है वो हार्डवेयर के ऊपर ये तुम्हारा ओएस जो हमारा होता है ना, जो हार्डवेयर है उसके टॉप पे हम लोग ओएस यूज करते हैं, ओएस के ऊपर जो होता है जनरली हम VMware यूज कर देते हैं। यहाँ पे VMware नहीं है, हम क्लाउड को यूज कर सकते हैं, क्लाउड का वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, और उसमें हम कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉकर। तो एक डॉकर का एक लेयर होगा जो कि हेल्प करेगा क्रिएट करने में कंटेनर को। मतलब डॉकर एक जस्ट लाइक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर तुमको इंस्टॉल करना पड़ेगा तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। मान लो तुम्हारे पास अभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तुमने डॉकर टूल जो है डाल दिया और उस डॉकर के हेल्प से कंटेनर क्रिएट कर रहे हो। कंटेनर क्रिएट किए, उसमें एप्लीकेशन वगैरह तुम अपना अपलोड कर सकते हो, उसमें तुम एप्लीकेशन जो है बहुत सारे डेवलप कर सकते हो। तो ये सारे चीज होगा, बट वो क्या करेगा, जब तक तुम यूज कर रहे हो तब तक वो स्पेस ले रहा है तुम्हारा मेन मशीन से, लेकिन जैसे ही उसका अभी यूज करना बंद किया, सपोज उसको शट डाउन कर दिए, स्टॉप कर दिए, तो वो क्या करेगा, रिलीज कर देगा, अननेसेसरी स्पेस लेके नहीं रखेगा। तो उससे क्या होगा, मशीन जो है फास्ट काम करेगा। दूसरा कंटेनर अगर रन कर रहा है तो उसके ऊपर लोड ज्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन VM पहले प्रॉब्लम क्या होता था कि VM अगर एक VM बना दिया, दूसरा VM बना दिए, तो एक VM यूज करो नहीं यूज करो, वो अगर रैम ले लिया है 4 GB तो वो 4 GB लेके रखेगा, आप यूज में रखो या नहीं रखो। स्टोरेज अगर 10 GB लिया है तो स्टोरेज वो रखेगा तो रखेगा। CPU का जितना भी प्रोसेसिंग उसके पास जितना एलोकेट किया हो स्पीड वगैरह, वो उतना लेके रखेगा। तो ये प्रॉब्लम पहले बहुत होता था, तो इसलिए कंटेनर आया। अब इसके बाद फिर आता है कुबरनेट। कुबरनेट फिर क्या करेगा, अब कंटेनर का ऑर्केस्ट्रेशन करता है, ऑर्केस्ट्रेशन टूल है इसका। तुम लोग इसका गूगल करोगे इसके बारे में बहुत रिसर्च, इसके ऊपर एरिक्सन ने लास्ट ईयर तुम्हारे सीनियर भैया लोग का क्लास लिया था, यही क्लाउड का जो ट्रेनिंग चल रहा था, एरिक्सन का रिक्वायरमेंट पड़ा था क्लाउड के लिए, तो हम लोग क्लासेस ले रहे थे, तो बीच में एक स्पेशल सेशन हुआ था एरिक्सन का। तो वही स्लाइड जो मैं जो पिछला PPT जो तुम लोग को दिखा रहा था ना, वो उन्हीं लोग का है। तो एरिक्सन ने इसके ऊपर सेशन भी लिया था, तो वो लोग इस पर काम भी करते हैं, कुबरनेटिक कंटेनर्स वगैरह जो तुम्हारा हाइब्रिड क्लाउड के ऊपर काम करती है एरिक्शन। तो रिक्वायरमेंट उनको भी काफी पड़ता है क्लाउड इंजीनियर का। तो वे यही है, कंटेनर क्या करेगा, फिर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, उसको कैसे मैनेज करना है आपको, मॉनिटरिंग कैसे करना है उसको, वो कैसे कंटेनर को स्केल कब होगा, स्केल डाउन कब करना है, ये सारी चीज जो है ये कुबरनेट हेल्प करता है उसके लिए। इसलिए कुबरनेटिस का भी बहुत डिमांड है इंडस्ट्रीज में। गॉट इट, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। Understood, guys? Can I move forward? Yes, sir. Yes. Okay, so let's go to the next. There are 3 ways to interact with AWS. तो 3 वे हैं, जो कि एक वे तो तुम लोग जनरली यूज कर ही रहे हो, अभी जो लैब करते हो वो कौन सा वे, कोई बता सकते हैं विच वे यू आर इंटरेक्टिंग विद द लैब? Sir, AWS management console sir console वेरी गुड। कंसोल सर, तो देखो AWS कंसोल। तो ये जो AWS मैनेजमेंट कंसोल है, ये एक ऐसा मतलब इंटरफेस है बोल सकते हो, मतलब इसे इजी टू यूज ग्राफिकल इंटरफेस और GUI बेस्ड इंटरफेस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है। और इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर लोग मैनेजमेंट कंसोल के थ्रू ही यूज करते हैं, जो कि खासकर जो कंप्यूटर साइंस से नहीं है या जिनका प्रोग्रामिंग स्किल वीक है, जिनका लाइनक्स नॉलेज कम है, वो ज्यादातर लोग जो है GUI इंटरफेस यूज करते हैं, मतलब मैनेजमेंट कंसोल के थ्रू करते हैं। तो आपको जो है आजकल इतना ज्यादा AI तो डेवलप हो गया है कि कोड पे आप कोई रिलाई हो नहीं रहे, कोड इवन तो SDK यूज भी कर रहे हो, CLI यूज भी कर रहे हो, तो सारे कोड तो अभी अवेलेबल है हमारे पास। तो इसलिए डेवलपर का भी धीरे धीरे अभी डिमांड कम होते जा रहा है। पहले डेवलपर का बहुत ज्यादा डिमांड था, लेकिन अभी डेवलपर का भी डिमांड कम हो गया, कि कोड के लिए पहले लॉजिक बनाते बनाते कितने कितने महीनों लग जाते थे। अभी एक टाइम आ गया है कि अभी कोड क्या है, तुम एक बार थोड़ा आइडिया दे दो AI को, वो तुमको कोड वगैरह सब दे देगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते जाओ, उसमें तुम्हारा रिक्वायरमेंट जो भी है वो धीरे 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 वो पूरा खुद कोड लिख के दे देगा। इसलिए अब लोड कम पड़ गया। लेकिन उस टाइम में जिस समय कोड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था डेवलपर को, या जो भी कोई नॉन टेक्निकल बंदा है, या खासकर जो नॉन CSIT ब्रांच के बच्चे हैं जिनको क्लाउड
सीखना है, जानना भी है, उनको बहुत इंटरेस्ट है, बट प्रोग्रामिंग स्किल का नॉलेज कम है, लिनक्स का नॉलेज कम है, उन बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। लेकिन एक जीयूआई ऐसा इंटरफेस है, मैनेजमेंट कंसोल, कि जितने चीज तुम सीएलआई के थ्रू करोगे, जो भी चीज कर रहे हो या एसडीके यूज करके कर रहे हो, सारे के सारे थ्रू तुम मैनेजमेंट कंसोल विंडो के थ्रू कर सकते हो एवरीथिंग। तो दैट्स व्हाई क्लाउड इज नॉट ओनली फॉर द CSIT student. It can, anybody done, even non-technical. You have seen the scenario ना, मार्था और फ्रैंक का सिनेरियो जो है, एक दोनों ही ऑनर है, बट दोनों ही क्या है, नॉन टेक्निकल पर्सन है। एक एक आर्मी रिटायर है, एक एक सीए से रिटायर्ड ऑफिसर है। दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों नॉन टेक्निकल हैं, और उनके जो बच्चे हैं थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज है हम लोग का। तो ऐसा केसेस है कि अगर आपका नॉलेज जो है कोडिंग का नहीं भी है, तो यू कैन इंटरेक्ट थ्रू द मैनेजमेंट कंसोल विंडो। लेकिन एक चीज, विंडो यूज करते हो तो चलो, हम लोग जो लैब कर रहे हैं तो उसमें तो चलो ठीक है, स्टेप्स वगैरह रहता है तो तुम कर पा रहे हो। लेकिन जहाँ पे स्टेप्स नहीं, जैसे चैलेंज लैब में तुम लोग फंसते हो, तो वहां पे प्रैक्टिस चाहिए। जीवाई तो यूज कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है कि वहां पे हर चीज आपको दिया लिखा पड़ा रहेगा, आप रीड कर करके एक एक स्टेप कर दोगे। इट इज नॉट लाइक दैट। Sometime you have to think, you have to explore. Services are available, and accordingly you need to proceed. And even you are using the GUI also, there will be some Linux knowledge will be required. You have seen in the previous 2 to 3 lab, you have seen that how much Linux is required. तो अभी तो कोड दिया हुआ है, तो इसलिए तुम लोग कॉपी पेस्ट मारते रहो। अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या करोगे? तो इसके लिए आपको लिखना है, जो भी कोड कॉपी पेस्ट अभी कर रहे हो उसको एक्सप्लोर भी करो, उसको उसको अंडरस्टैंड करके यूज करो। ये नहीं कि हर बार कॉपी पेस्ट से ही काम चलने वाला है। ओके, सो वन इंटरफेस इज योर GUI, another is CLI, command line interface. Also you can do everything whatever you are performing through the GUI, you can also go through the CLI. उसके बाद एक आता है कीट, भी है इसका खुद का, आई मीन AWS का भी है, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, गूगल का भी है, एज्योर का भी है। उनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, उसको यूज कर सकते हो, और उससे भी सारे चीज तुम जितने भी सर्विसेज हैं उसको एनेबल कर सकते हो, उससे परफॉर्म कर सकते हो कोड के जरिए। तो ये ऊपर वाला जो है CLI, वो ज्यादातर लाइनस के यूज करता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो है ज्यादातर पाइथन या जावा वगैरह, अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेवलप वगैरह कुछ करना है तुमको, तो उसके हेल्प से आप कर सकते हो। तो 3 इंटरफेस हैं, आप लोग ध्यान में रखना इंटरेक्ट करने का। AWS का CLI हो गया, मैनेजमेंट कंसोल एंड SDK। जस्ट हैव अ लुक फॉर ऑल 3, आई मीन थर्ड सेक्शन की टेकअवेज। सर थोड़ा ऊपर कर सकते हैं क्या? हम्म तो आज तुम लोग का बस क्लाउड का ही क्लास है। Yes. Yes, sir. Okay, so just have a look for cloud adoption framework. इसको रीड करो अच्छे से। Okay, business, then next is your people, then third one is your governance, platform, security, and operations. A comprehensive approach to cloud computing across the organization and throughout the IT life cycle to accelerate successful cloud adoptions. AWS CF मतलब adoption framework is organized into 6 perspectives. तो CF जो है बेसिकली 6 पर्सपेक्टिव पे काम करता है, और जो है ऑलरेडी मैंने अभी जस्ट बोल ही दिया है कि बिजनेस हो गया, पीपल, गवर्नेंस, यहाँ पे लिखा भी है, ये चार्ट में देख भी सकते हो फिगर में, कि इसके पर्सपेक्टिव हैं। पर्सपेक्टिव कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज। सो जस्ट हैव अ लुक 6 कोर पर्सपेक्टिव। तो फोकस ऑन बिजनेस कैपेबिलिटी, अगर बिजनेस के ऊपर फोकस करते हो तो उसके अंदर 3 टाइप आते हैं। एक बिजनेस इटसेल्फ है, पीपल हो गया, गवर्नेंस हो गए,
And if we'll focus on the technical capabilities, then there will be three more categories. That is your platform, security, and operations. तो इसको ध्यान में रखना। अब इसका अभी हम लोग जो है एक एक सिनेरियो से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे बिजनेस पर्सपेक्टिव क्या है बेसिकली। सो जस्ट हैव अ लुक, बिजनेस में क्या क्या था। आईटी फाइनेंस हो गया, आईटी स्ट्रैटेजी, बेनिफिट रियलाइजेशंस, बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट। We must ensure that IT is aligned with business needs and that IT investments can be traced to demonstrable business result. So business manager, finance manager, budget owner, strategy stakeholder, तो ये सारे जो लोग हैं बेसिकली देखो हमारा क्या है, क्लाउड को अडॉप्ट करना है। देखो इसको पढ़ने से तो कुछ तुम लोग को मुझे नहीं लगता समझ पाए होगे। कुछ समझ आया गया तुम लोग को अभी तक? हैव यू अंडरस्टूड एनीथिंग? ओके, तो देखो इसका क्या है, इसको रिलेट करते हैं हम लोग पहले क्लाउड से। अगर मुझे क्लाउड अडॉप्ट करना है तो जैसे मैंने अपना खुद का कंपनी ओपन किया और कुछ लोग का हायर किया हूँ मैं, और मुझे जो है प्लेटफॉर्म जो है क्लाउड का लेना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड का लेना है, सॉफ्टवेयर भी क्लाउड का लेना है। तो मुझे जो है क्लाउड जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे डील करना होगा। मैं ऐसे, ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल यूज़र नहीं है यहाँ पे। तो मुझे एक बड़ा कंपनी अपना ओपन करना है तो मुझे अपना फ्यूचर गोल देख के उतने सर्विसेज लेना होगा। तो उसमें भी जैसे होता है ना, जो मार्केट में जाते हो तो मॉल वगैरह में जाओगे तो अगर कोई एक्सपर्ट बंदा है जो बार बार मॉल जाता आता रहता है, उसको बार्गेनिंग वगैरह ये सब करना, या अगर फिक्स रेट का है चीज़ें तो चलो ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं होता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे जगह है जहाँ पे बार्गेनिंग वगैरह होता है, जहाँ पे चीज़ें जो है मतलब आप डील जैसे करते हो उसमें बहुत सारे परसेंटेज डिस्काउंट वगैरह भी मिल सकता है। उसमें बहुत सारे है, अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप कितना कम करा सकते हो चार्जेस में, है। जो फिक्स रेट है तो फिर वहाँ पे मतलब जो एक्सपीरियंस हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाओगे जो रेट है उतना ही लगेगा। आप एक्सपर्ट हो या जो भी हो, जाओगे तो जो चार्ज ड्रेस का है तो उतना आपको तो देना ही पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे बार्गेनिंग होता है, जिस मॉल में जिस शॉप में बार्गेनिंग हो रहा है, तो वहाँ पे जो लोग को आइडिया है पहले से, जो लोग उस सर्विसेज को यूज किए हुए हैं, वो लोग बहुत ही बेस्ट बार्गेनिंग कर सकते हैं। उससे आप अगर किसी दोस्त को लेके जा रहे हो, उसको पता है, तो वो आपको फायदा दिला सकते हैं। उसमें आप अगर 10 रुपये कम कराते तो मे बी वो 20 रुपये कम करा दिया, तो आपको तो 10 रुपये फायदे हुए। तो वैसे ही क्लाउड में भी होता है। अगर जो एक्सपर्ट हैं, जो बिजनेस डील जो करते हैं, तो उनको खासकर जो टेक्निकल लोग हैं, पहली बात तो दो कैटेगरी इसलिए बनाया गया है, यहाँ से पहले समझो तुम लोग। ये जो दो कैटेगरी बनाया है, एक बिजनेस डील के लिए है, एक टेक्निकल के लिए है। तो जो टेक्निकल बंदे हैं उन लोगों को अगर क्लाउड को अडॉप्ट करना है, क्लाउड के सर्विसेज को हमें क्लाउड के अडॉप्शन फ्रेमवर्क को अपने कंपनी में यूटिलाइज करना है, तो पहले क्लाउड का नॉलेज वाले बंदे को भी चाहिए। इसलिए कंपनी ऐसा नहीं है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वही क्लाउड इंजीनियर को हायर करता है। समझ रहे हो ना? केवल एडब्ल्यूएस इंजीनियर क्लाउड इंजीनियर को हायर नहीं करता, गूगल केवल नहीं करता, एजूर नहीं करता। जो क्लाउड सर्विस कंज्यूम करते हैं जैसे कैपजेमिनी, टेक महिंद्रा, एरिक्सन, देर आर सो मेनी, टीसीएस, जैसे ये क्लाउड सर्विस को लेते हैं। वो गूगल से हो गया, ये हो गया तुम्हारा एल्टीमाइंट्री, ये सब क्या है, क्लाउड सर्विस को वो लोग कंज्यूम करते हैं। एजोर से लेता है कोई, कोई गूगल से लेता है सर्विस, तो कोई एडब्ल्यूएस से लेता है। तो उनके कंपनी में भी वैसे लोग होने चाहिए जो सर्विसेज को समझते हैं और उस पर डील कर पाए। अगर मेरे को EC2 लेना है तो EC2 वाला एक्सपर्ट बंदा अगर रहेगा कि कितने चार्जेस होंगे, ठीक है। मेरे को AWS बोल रहा है कि पर डे को मैं तुमको 1.5 डॉलर में चार्ज करूंगा, तुमको इतना ये दे रहा हूँ मैं CPU, 5 CPU दे रहा हूँ, वर्चुअल CPU, उसके बाद उसके साथ इतना साइज का रैम दे रहा हूँ, इतना स्टोरेज दे रहा हूँ, तो मेरे को हर दिन का मेरे पर $1.5 तुमको देना पड़ेगा। अब कोई और एक्सपर्ट बंदा है तो फिर सोचेगा अगर नहीं इतना CPU है मैं उसको कम कर देता हूँ, अभी मेरा यूज नहीं है। रैम जो है मैं अभी करंटली इतना यूज नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो है स्टोरेज इतना अभी यूज नहीं है, तो मैं उसको कम कराऊंगा, फिर चार्ज और कम होगा। फिर इसका मतलब मान लो एजोर इतना पैसा ले रहा है तो गूगल फिर कितना लेगा, गूगल से फिर मैं डील करता हूँ। तो क्या इसमें बेनिफिट होगा, गूगल क्या मेरे को इससे बेहतर क्या दे सकता है, एजोर क्या देगा? अगर एजोर बेस्ट है तो मैं एजोर का सर्विस लूंगा, मैं AWS नहीं लूंगा, गूगल नहीं लूंगा। तो ये सब जो है नॉलेजेबल बंदे ही कर सकते हैं।
जिनका AWS प्रोडक्ट के बारे में पता है तो AWS का डील करेंगे, जिनको क्लाउड के गूगल क्लाउड का पता है तो इसलिए कंपनी में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड का रिक्वायर। कभी कभी देखना कोई कंपनी आती है कैंपस हायरिंग में तो बोलती है क्या, आपके पास गूगल क्लाउड ट्रेन बच्चे हैं तो उनका लिस्ट हमें दीजिए, हम लोग उनका प्रोसेस करेंगे, उनको शॉर्टलिस्ट करके उनका हायरिंग करेंगे। फिर कुछ कंपनी आएगी वो बोलती है कि नहीं, आपको AWS क्लाउड ट्रेन बच्चे हैं तो उनको दे दीजिए। कोई कंपनी आएगी वो बोलेगी नहीं एजूर का ट्रेन बच्चे को दीजिए। कोई कंपनी आती है बोले चलो ठीक है क्लाउड ट्रेन बच्चे को दो, हम लोग उसको गूगल सिखा देंगे AWS का है तो, या गूगल का है तो हम AWS उसको सिखा देंगे, या एजूर का है तो हम दोनों, हमें अगर AWS चाहिए तो हम उसको बाद में सिखाएंगे अपने इसमें इंटर्नशिप जब कराएंगे तो सिखा देंगे हमें, या उनको प्री प्रोजेक्ट ट्रेनिंग देके सिखा देंगे। तो ये ऐसे रिक्वायरमेंट पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको भी डील करना होता है सर्विस प्रोवाइडर से, और उनके भी क्लाइंट हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुद दूसरे के क्लाइंट है, उनके भी तो बहुत सारे क्लाइंट है ना, वो भी क्लाउड सर्विसेज ले रहे हैं तो उनके वो हाइब्रिड क्लाउड मान लो मॉडल फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारे चीज के लेके बिजनेस डील होता है। तो हमें फोकस जो होता है बिजनेस पे करना होता है, टेक्निकल कैपेबिलिटी, दो फोकस होते हैं। एक होता है कि पैसे वैसे को लेकर आपको डिस्कस करना है, आपको कहाँ पे गवर्नेंस भी चाहिए, हमें हमें अप्रूवल वगैरह चाहिए। अप्रूवल मतलब जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे भी एलोकेट कर रहे हैं और जो भी सर्विसेज हम ये कर रहे ले रहे और किस बेसिस पे ले रहे हैं, ये सारे चीज का हमें बैकएंड में जो अप्रूवल भी चाहिए, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नेंस सर्विसेज, सिक्योरिटी, गवर्नेंस, ये सब उसके अंदर आएगा। सिक्योरिटी का एक स्पेशल कैटेगरी भी बनाया गया है जो कि टेक्निकल एक्सपेक्ट में रहता है, टेक्निकल कैपेबिलिटीज में। उसको इस साइड में तुम देख सकते हो, प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी एंड ऑपरेशन में। पीपल बिजनेस, ये अभी मैंने बताया वही कि कितने क्लाइंट हैं, आपको क्लाइंट के हिसाब से आपको डील करना पड़ेगा। पीपल में वो आ गया। बिजनेस का मतलब समझ चुके हैं, गवर्नेंस मैंने अभी एक्सप्लेन किया। फिर सिक्योरिटी हो गया, प्लेटफॉर्म ऑपरेशंस। सिक्योरिटी तुम लोग सब जानते हो, सिक्योरिटी कैटेगरी में क्या क्या आते हैं बताओ। व्हाट आर द थिंग्स यू विल बी टेक्निकली फोकस ऑन द सिक्योरिटी सर्विस? IAM केवल IAM? अभी इतने सारे सर्विस लिखा है ना, मैंने बोला लिखने के लिए तुम लोग कॉपी में, क्या क्या था सिक्योरिटी सर्विस? यस सर, IAM, Cognito, Amazon Shield, AWS AMS, Shield Amazon sharing data. security. So AWS KMS Artifact AWS KMS वेरी गुड। तो इसलिए मैं लिखाया हूँ क्योंकि जहाँ जरूरत पड़ेगा आप लोग को, ये बार बार कॉपी को भी पलट के आप उसको देख देख के भी याद हो जाएगा आप लोग को। देखो सिक्योरिटी जब भी बोलता हूँ, कंप्लायंस बोलता हूँ, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए IAM, तो बार बार तुम लोग बोलते ही हो। कॉग्निटो याद रखो, अभी नया है। शील्ड हो गया, आर्टिफैक्ट हो गया, KMS हो गया, ये सब जो है आपके सिक्योरिटी सर्विस में आएंगे। जैसे मैंने अभी गवर्नेंस की बात कर रहा था, गवर्नेंस किधर है बताओ? मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस सर्विसेज। उसमें जो आता है क्लाउड वॉच हो गया, क्लाउड टेल हो गया, ट्रस्टेड एडवाइजर है, ऑटो स्केलिंग है, ये बहुत सारे CLI वगैरह है, ये सब जो है तुम्हारा क्लाउड का मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट कंसोल विंडो जो यूज करते हो ना, वो भी गवर्नेंस सर्विस के अंदर आता है। तो वो ये मैनेजमेंट कंसोल विंडो तो याद रहेगा, वो गवर्नेंस, वो दिमाग में तुम्हारा चलना चाहिए गवर्नेंस सर्विसेज में। पीपल का तो कुछ ये नहीं है, क्लाइंट वगैरह उसके अंदर कंसिडर कर सकते हो, कस्टमर वगैरह। बिजनेस का मतलब समझ ही रहे हो, बता दिया। सिक्योरिटी समझ गया, प्लेटफॉर्म एवरीबडी नोज दैट। ऑपरेशन क्या हो सकता है? ऑपरेशन किसके अंदर आएगा बताओ? सिक्योरिटी एंड ऑपरेशंस, एंड अनदर एक सर्विसेज है इटसेल्फ है ऑपरेशंस। सो व्हाट डज मीन बाय ऑपरेशन हियर? ऑपरेशन क्या होगा बोलो? क्या? Compute services, database services. यस, ऑपरेशन में कंसिडर कर सकते हो क्योंकि हम अगर टेक्निकल कैपेबिलिटीज को देखें तो सिक्योरिटी मेजर्स तो होंगे, प्लेटफॉर्म होगा, प्रोसेस कराना है हमें ऑपरेशंस। इससे तो स्टोरेज स्टोरेज हो गया, डेटाबेस हो गया, कंप्यूट हो गया, ये सब उसी के अंदर आएंगे, ऑपरेशंस के अंदर ही आएंगे। तो प्रोसेस कैसे करेंगे हम डाटा को, ये सब रिलेटेड चीजें जो है इट विल बी कमिंग अंडर द ऑपरेशन। इसके बाद और भी यहाँ पे डिटेल में भी बताया गया है, आगे अगले जो स्लाइड हैं वहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं मोर। बिजनेस के अंदर जो है IT फाइनेंस हो गया, IT स्ट्रैटेजी हो गया, बेनिफिट रिलेशंस, बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट, आपको उसको भी फोकस करना है कि हम इतना कंज्यूम कर रहे हैं सर्विस, कितना इतना पैसे भी तो लगेंगे ना। ऐसा तो नहीं है क्लाउड फ्री में तो नहीं मिलने वाला है। क्लाउड तो फायदा देता है बट उसके हिसाब से चार्ज भी लेता है, तो वो भी फोकस करना है। और रिस्क, और क्या रिस्क? रिस्क इन द सेंस ऑफ ऐसा नहीं है कि पैसे का रिस्क, और भी चीजें का रिस्क हो सकता है। बैकअप वगैरह आपको रखना पड़ेगा। आपको जो है एट एनी पॉइंट मतलब 24/7 जो है सर्विसेज क्लाइंट को रीच कराना है। तो उसमें कोई फेलियर आता है तो आप कैसे उसको रिकवर कैसे करोगे, आप इमिडिएटली बैकअप कैसे दोगे, तो वो सारे चीज़ जो है डाटा सेंटर पे अवेलेबल होना चाहिए। तो वो सब चीज़ का भी है, आपको डिस्कस बिजनेस में ही डील कर लेना है।
कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर उसको देगा कि नहीं उसका बैकअप पूरा। उसके बाद पीपल में क्या क्या हो सकता है, रिसोर्स मैनेजमेंट, इंसेंटिव मैनेजमेंट, कैरियर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन चेंज मैनेजमेंट। तो ये सब आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, लाइक वी मस्ट प्रायोरिटाइज द ट्रेनिंग, स्टाफिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन चेंज टू बिल्ड एजाइल ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब ये वही है कि पीपल को ट्रेन करो, आप उनको अवेयर करो, सर्विसेज को समझाओ, उनको ट्रेनिंग दो, उनको जो है ऑर्गेनाइजेशन का गोल को समझाओ, और आपका जो है मेन आपका जो है टारगेट क्या है, जो शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है। और ट्रेनिंग एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि सबको, जैसे होता है ना आजकल के टाइम में साइबर सिक्योरिटी जैसे एक टर्म है, जो कि हर हर ऑर्गेनाइजेशन आजकल जो है ना अपने एम्प्लॉय को, इवन डेवलपर को भी ट्रेनिंग दिया जाता है, इवन जो है नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उनको भी ट्रेनिंग दिया जाता है, टीचिंग स्टाफ को भी दिया जाता है। अगर इंस्टीट्यूशन में एग्जाम्पल लोगे तो कॉरपोरेट में जाओगे तो जो लोग जो कंसल्टेंट हैं, जो लोग इवन एचआर हैं, या जो लोग तुम्हारे नॉन टेक्निकल प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, सबको ट्रेनिंग दिया जाता है साइबर सिक्योरिटी का, आई मीन सिक्योरिटी का ट्रेनिंग दिया जाता है, कि 1 2 3 4 दिन का ट्रेनिंग। ये गवर्नमेंट ने खुद ही ये किया है, अलाउ कर ऑर्डर किया है कि आप सारे, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो इस पे ज़्यादा ही फोकस करता है, इस हर किसी को सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। तो वैसे ही ये आपको जो है अवेयरनेस और ट्रेनिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो वही पॉइंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे हम साइबर सिक्योरिटी की बात नहीं ले सकते, हाँ, बट हम क्लाउड की बात कर रहे हैं तो उसका ट्रेनिंग और स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजेशन चेंज और उसका गोल, ये सारे चीज़ को एम्प्लॉय को और आपके जो कस्टमर्स हैं उनको भी बहुत सारे चीज़ को अवेयर करना है। जैसे तुम लोग देखते होगे ये जो बैंकिंग का, जो ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह यूज़ करते हो, और जो भी ट्रांजेक्शन करते हो, बीच बीच में कॉल आता है, एसबीआई हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, या इंडियन बैंक हो, या जो भी बैंक है, वो लोग बीच बीच में कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आपको जो है बी अवेयर रहना है किसी का कॉल को, ये इंटरनेशनल कॉल हो या कोई ओटीपी मांगता है या आधार कार्ड मांगता है, नंबर ये सब नहीं देना है। ये क्यों किया जाता है? ये तो हम तो उनके एम्प्लॉय नहीं है, हम तो उनके साथ काम नहीं कर रहे हैं बैंक में, लेकिन फिर भी हमें क्यों बताया जाता है वो चीज़? क्योंकि हम उनके क्लाइंट हैं एक्चुअली, राइट। सपोज मैं एसबीआई अगर यूज कर रहा हूँ तो मैं उनका क्लाइंट हुआ ना, तो क्लाइंट को भी अवेयर करना है हमें कि आपको भी ये रहना है, सतर्क रहना है कि अगर कुछ होता है तो एट द एंड में तो आप फिर बैंक को दौड़ोगे, आपके पैसा अकाउंट से अगर चला गया, 1 2 लाख रुपया गलती से आपने अपना डिटेल बता दिया, किसी ने ले लिया, अब उसके बाद फिर आप क्या करोगे? अब वो तो लेके चला गया था, आप दौड़ोगे बैंक के पास, तो बैंक वाला भी क्या कर सकता है, वो तो पैसा निकाल लिया, इमीडिएटली वो ब्लॉक करेगा, लेकिन ब्लॉक करते करते तब तो पहले पैसा चला गया। तो इसीलिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर द एम्प्लॉय, ऑल्सो फॉर योर क्लाइंट एंड द कस्टमर। नाउ जस्ट हैव a look for the governance perspective। ये तो मैंने पिछले वाले में भी डिस्कस किया, यहाँ पे भी वही मेन चीज वही है। गवर्नेंस में आपका जो है फोकस होना चाहिए, जो गोल है आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल, एंड यू हैव मस्ट हैव टू एंश्योर द स्किल्स एंड प्रोसेस अलाइन विद द आईटी स्ट्रेटजी and the goal with the business strategy, and the goal so that organization can maximize the business value of its IT investment and minimize the business risks। I hope it's clear to all। समझ आ गया ना ये वाला पॉइंट तुम लोग को गवर्नेंस का? Do you want to need any explanation from my side, or have you understood? Can I move forward? Did you understand governance? Yes, yes. यस सर। Okay। Yes, sir. चलो इसको इसको तुम लोग एक्सप्लेन करो। प्लेटफॉर्म को तुम लोग करोगे एक्सप्लेन, एंड सिक्योरिटी को तुम लोग एक्सप्लेन करोगे, टेक्निकल वाला तुम लोग एक्सप्लेन करोगे। लेट्स गो अहेड, एनीवन कैन स्टार्ट। आज ये खत्म हो जाएगा तुम लोग का ये पीपीटी टेक्ने, मतलब जो थ्योरी वाला पोर्शन, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का जो बेसिक फंडामेंटल क्लाउड का था AWS का। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग हैंड्स ऑन करेंगे। यस गाइस, वॉलंटियर इट, लेट्स स्टार्ट स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक, प्लेटफॉर्म पर्सपेक्टिव। एनीवन कैन स्टार्ट। सर जो प्लेटफॉर्म पर सकते स्पीक मतलब लाउडर। ऐसा
Who's speaking? हेलो Yeah, I can hear you. सर, जो प्लेटफॉर्म पर्सपेक्टिव बोलना चाह रहा है कि जो आपका टेक्निकल फाउंडेशन जो कि मतलब कंप्यूट नेटवर्क स्टोरेज और उसके साथ बहुत कुछ वो वेल डिजाइंड और अलाइंड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के क्लाउड गोल्स के साथ। Hmm. Okay, good. Next person. अरे बाकी और लोग भी बोलो, एक ही बंदा है क्या पूरे क्लास में? सर ये जो प्लेटफॉर्म पर्सपेक्टिव है वो मतलब ज्यादातर फोकस करता है डिजाइनिंग में, इम्प्लीमेंटिंग में, हम्म और इसका यूज सर हम बहुत सिंपली बोलेंगे तो लाइक अच्छा बोलो बोलो बोलो, एक एक करके बोलो। हाँ, yes yes, go ahead. Who was speaking? Someone was speaking, no? सर मैं बोलता हूँ सर बहुत सिंपली अगर उसे बोले तो वी नीड टू बी एबल टू डिजाइन द हाई लेवल आर्किटेक्चर पहले। हम्म जैसे हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आर्किटेक्चर को पहले अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके बाद लो लेवल इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे, क्योंकि अगर हाई लेवल आर्किटेक्चर ही हम लोग का गलत हो जाता है तो लो लेवल इम्प्लीमेंटेशन एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो भी गलत हो जा रहा है। तो हम्म उसके अंदर ही प्लेटफॉर्म पर्सपेक्टिव पहले पहले आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग द नेचर ऑफ आईटी सिस्टम्स एंड द रिलेशनशिप्स। जैसे आईटी आप कोई भी सिस्टम बनाना चाहते हैं, जैसे एक नोटिफिकेशन सिस्टम जैसा एक छोटा सा सर्विस आप अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो यू हैव टू इंटीग्रेट अ लॉट ऑफ एडब्ल्यूएस सर्विसेज एंड उसके साथ ही आपको बजट के रूल्स सब कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा कि इट वर्क्स एज अ प्लेटफॉर्म। यूजर को बस बोल देना है कि मुझे ये फंक्शनलिटी चाहिए, ये फंक्शनलिटी चाहिए, ये फंक्शनलिटी चाहिए, एंड दैट इज मेड अवेलेबल टू देम। वेरी गुड। आई मीन तुम लोग को एक आर्किटेक्चर डिजाइन करना है। बहुत अच्छा इसने बोला कि अगर मैं मेरा कंपनी है, तुम मेरे क्लाइंट हो और मेरे को मैं सर्विस AWS से मैं ले रहा हूँ, और तुम मेरे को रिक्वायरमेंट अपना बता दिए, और मैं मेरे पास भी वो सारे सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारा जो भी रिक्वायरमेंट है पहले तो प्रॉपर रिक्वायर इस यहाँ पे वही एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि आपको जिसका रिक्वायरमेंट है उसको पहले अंडरस्टैंड करना प्रॉपरली। क्योंकि वो चीज़ अगर सही से आप कलेक्ट नहीं किए रिक्वायरमेंट को, तो फिर आप जब दूसरे सर्विस किसी और कंपनी से ले रहे हो, सपोज AWS से ही ले रहे हो, तो फिर वो जो भी सर्विस देगा, आपका क्लाइंट कुछ और बोला, आपने कुछ और लिया, फिर उसको आप कुछ और दे रहे हो, तो फिर वो ट्रस्ट नहीं रहेगा और बाद में फिर वो भी कंप्लेन करेगा आपको। तो पहले रिक्वायरमेंट को गैदर करना, और इसके अंदर जो होता है कि आप कौन कौन सा चीज़ों पे काम कर रहे हो। क्या आप हाइब्रिड क्लाउड पे कर रहे हो, प्राइवेट क्लाउड एनवायरनमेंट चाहिए आपको, पब्लिक क्लाउड चाहिए, ये सारे चीज़ का पहले डील करना है। फिर क्या आपको स्केलेबल फीचर चाहिए क्या, वो डीलिंग करना है। आपको जो है वर्कलोड कैसे बैलेंस कर रहे हो, इन द सेंस ऑफ जैसे मान लो आपके पास शूज तुम्हारा जो है एक टाइम में लोड पड़ गया आपके कंप्यूट सर्विस के ऊपर, तो उसके लिए आपको ऑटो स्केलिंग फीचर एनेबल करोगे, फिर लोड बैलेंस करना है, वो सब भी आपको डील करना है। तो मतलब एक प्रॉपर आर्किटेक्चर जो है, पूरा डिजाइन जो है करना है कस्टमर से डील करके, उसके हिसाब से आप सर्विस प्रोवाइडर को रीच करोगे, और वो आपका टारगेट होगा। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है ना, वी मस्ट हैव टेबल टू डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ द टारगेट स्टेट एनवायरनमेंट इन डिटेल। तो दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, लाइक हमें जो है सारे एस्पेक्ट, स्टोरेज हो, नेटवर्किंग हो, कंप्यूट हो, यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें मेंशन भी कर दिया इसने, कंप्यूट, नेटवर्किंग, स्टोरेज, डाटाबेस, सिस्टम सॉल्यूशंस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, in all the aspect you have to deal with the first customer, and accordingly you have to request to the service provider. So you should have a knowledge of this also. इसलिए जो है हर अलग अलग एडॉप्शन फ्रेमवर्क पे अलग अलग टाइप के लोग काम करते हैं। इसलिए यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें मेंशन भी किया गया, CTO, IT मैनेजर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, ये सब लोग जो है इस पे काम करते हैं। सबका अलग अलग कैटेगरी दिया गया है कि कौन आदमी कहाँ के। देखो इसमें क्या कौन काम कर सकता है, गवर्नेंस में CIO, प्रोग्राम मैनेजर्स, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट्स, बिजनेस एनालिस्ट एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स। तो ये सब लोग जो है ना, इन लोग का जो प्रोफाइल होता है, उन लोग का ये सब नॉलेज बहुत बेहतर ढंग से आना चाहिए। फिर अगर CTO अगर है, IT मैनेजर हैं, सोल्यूशन आर्किटेक्ट, इन लोग को प्लेटफॉर्म का नॉलेज बहुत बेहतर ढंग से है। प्लेटफॉर्म इन द सेंस ऑफ
कंप्यूट प्रोविजनिंग, आप कंप्यूट सर्विस के नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूट तो सब लोग जानते हो, तुम लोग नेटवर्किंग सर्विस समझते हो, स्टोरेज का पता है तुम लोग को, डेटाबेस भी पता है, सिस्टम सोल्यूशन। तो ये सारे चीज का जो है ना आर्किटेक्चर, एक पूरा वेल फ्रेमवर्क तुमको तैयार करना पड़ेगा। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट गैदर करना है, फिर उसके बाद आप खुद कितना चीज आप प्रोवाइड कर सकते हो और कितना आपको क्लाउड से लेना पड़ रहा है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ द साइड, राइट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे चीज तुम क्लाउड से लोगे सर्विस प्रोवाइडर, तो तुम्हारा प्रॉफिट कम होगा, है ना। कुछ कुछ चीजें खुद भी इंप्लीमेंट कर रहे हो, खुद भी प्रोवाइड करोगे क्लाइंट को, तो उससे फायदा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं गया था कुछ दिन पहले, अल्टीमेंट्री का एक साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम चल रहा था चेन्नई में। मैंने पोस्ट भी डाला था बीच में लिंक्डइन में, जो लोग पहले से मेरे जो कनेक्शन में होंगे वो देखते भी होंगे। मैं गया था, मेरे साथ प्राचीत सर और अभिषेक सर, तुम लोग जानते होंगे, वो लोग डीन भी हैं ट्रेनिंग प्लेसमेंट के और इंडस्ट्री एंगेजमेंट के। तो हम तीनों ही गए थे चेन्नई। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, देखो एलटीआई माइंट्री का काम किया है। मैं 3-4 दिन वहाँ पे था, वो लोग भी थे हमारे साथ, डीन सर लोग थे। तो हम लोग का एक ही समझ आया वहाँ पे कि देखो क्लाइंट उनको रीच कर रहा है, उनको सिक्योरिटी के लेके एलटीआई माइंट्री को बहुत सारे जो कस्टमर है उनको रीच करना है। बट एक्चुअली एलटीआई माइंट्री जो है वो पूरा टूल यूज कर रहा था किसका, एज्योर का। एज्योर उसके मतलब सारा काम एज्योर कर रहा है, ठीक है। बट क्लाइंट किसका है, एलटीआई माइंट्री का। और वो हम जो रीच कर रहे हैं, सपोज मैं एक क्लाइंट हूँ, मेरे को सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह सारे चीज़ें मेरे ऑर्गेनाइजेशन का, मेरा एक छोटा एबीसी कंपनी है, और एबीसी कंपनी को पूरा सिक्योरिटी जो है का रिस्क, मतलब सिक्योरिटी का पूरा जिम्मेदारी मेरे को देना है एलटीआई माइंट्री, क्योंकि मैं जानता हूँ एलटीआई माइंट्री जो है सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो मैं एलटीआई माइंट्री को रीच किया मैं, ठीक है। अब देखो एलटीआई माइंट्री खुद का उसका प्लेटफॉर्म नहीं है, वो मैक्सिमम प्लेटफॉर्म दूसरे का, थर्ड पार्टी वेंडर का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है। वो एज्योर का प्लेटफॉर्म क्लाउड सिक्योरिटी के लिए ले रहा है, फिर फोर्टिफाई यूज कर रहा है दूसरे ब्रांड, दूसरे थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस का। उसके बाद जो है काली लिनक्स यूज कर रहा है इथिकल हैकिंग के लिए, वो अलग एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन का हो गया। ये सारे टूल्स वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं, लेकिन क्लाइंट सब मैक्सिमम लोग उसको रीच कर रहे हैं, ब्रांड वो अपना दिखा रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई और काम कर रहा है, कोई और सर्विस दे रहा है। बट हाँ, ये लोग उस चीज को उसको सिमुलेट करना, उसके सारे जो जो भी पैचेज जो हैं उसको इंस्टॉल करना, उनके जो जो फॉल्ट आ रहे हैं, जो भी रिस्क हैं उसको मिटिगेट करना, या क्या क्या मतलब सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो कितना कर सकता है एल्टीमेंट्री, वो करता है। बाकी और जो जो हेल्प है वो दूसरे तुम्हारे जो है कंपनी से लेता है। तो ये चीजें यहाँ पे भी वैसे ही होता है क्लाउड में भी। आप किसी आईबीएम को अगर रीच कर रहे हो या एरिक्सन को रीच कर रहे हो, तो एरिक्सन के पास सारे सर्विस नहीं है, तो वो दूसरे क्लाइंट को रीच करेगा। तो उसके कंपनी के अंदर जो लोग इस सर्विसेज के ऊपर काम कर रहे हैं उनको बहुत बेहतर नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूट का, नेटवर्क का, स्टोरेज का, डेटाबेस का, ये सब का नॉलेज बहुत ज्यादा जबरदस्त का होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तरफ से डील कर रहे हैं, क्लाइंट से भी डील कर रहे हैं और अपने वो खुद भी क्लाइंट है किसी और कंपनी का, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस वे। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। प्लेटफॉर्म का हो गया हम लोग का, सिक्योरिटी का तो सबको पता है, ये मैं फिर से डिस्कस नहीं करूंगा, ऑलरेडी वी ऑल नो दैट, बहुत बार सिक्योरिटी सर्विस का हो चुका है। ऑपरेशन सर्विसेज में एक बार देख लो, ओवरलुक कर लो। IT operation managers, IT support managers, we align with the support the operation of the business and define how day to day, quarter to quarter, year to year business will be conducted. Did you understand this? मतलब पूरा मॉनिटरिंग वगैरह अगर हो गया, ये सारे चीज जो है क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, कितना जो है हम बैकअप प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई डिजास्टर सिचुएशन आता है तो ये सारे चीज पे ऑपरेशन जो है वो काम करती है। इसलिए इसमें IT ऑपरेशन मैनेजर हो गए, IT सपोर्ट जितने भी स्टाफ हैं और सपोर्ट मैनेजर्स जो होते हैं, खासकर IT के ही होना चाहिए, क्योंकि हमें बैकअप चाहिए अगर, या कोई कोई नया कोई टूल रिलीज हुआ है, नया अपडेट हुआ है, उसको अपने इन्वायरमेंट में लाना, क्योंकि हर नए नए टूल्स जो हर नए नए जो सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं उसके साथ पैचेज आते हैं। पैचेज का मतलब आई थिंक तुम लोग को पता ही होगा, सिक्योरिटी से जो अगर किसका नॉलेज होगा तो, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। जो पैचेज जो होते हैं ना, जो भी सिक्योरिटी ब्रिजेस जो हो सकते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, या कोई कोई अटैक होने का चांसेस जो होता है, तो वो लोग इसीलिए हर सॉफ्टवेयर ना, हर एप्लीकेशन अपना अपना एक पैचेज जो है अपना सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के साथ उसको ऐड कर देता है। वो कहता है वो एक एक जस्ट लाइक फायरवॉल जैसा होता है ना, फाइट करता है सारे अनऑथराइज एक्सेस को, वैसे ही वो पैचेज भी हो ना, वो सर भी वल्नरेबिलिटीज को हटाने के लिए
हाँ वो भी बोल सकते हो। जो भी वीकनेस होगा तुम्हारे सिस्टम में या कोई भी अटैक होने के चांसेस हैं या जो भी मतलब वनरेबिलिटीज हैं उसको हमें मिटिगेट करना या उससे फाइट करना, उसको तुम्हारे एनवायरनमेंट में नहीं एंटर होने देना, ये सब के लिए पैचेज आते हैं। तो वो हम अपडेट, इसीलिए जब भी तुम्हारा आता है ना सिस्टम कि आप अपडेट करो, विंडोज का अपडेट आया या कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, स्टैटिक एप्लीकेशन या डायनेमिक, तो उसको बोलता है बार बार अपडेट करो। तो अपडेट कर देना चाहिए। अपडेट नहीं करोगे ना, पुराना लोगे, तो उसमें ज्यादा करके चांसेस है वनरेबिलिटीज आने के, वीकनेस सॉफ्टवेयर के ऊपर होने के बहुत चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए वी शुड बी कीप अपडेटिंग। ये सब साइबर सिक्योरिटी का टर्म्स हैं। लेकिन तुम लोग का भी नॉलेज, क्लाउड वाले बच्चों को भी ये सब नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज क्लाउड के बाद एक होता है क्लाउड सिक्योरिटी का भी है कोर्सेस, समझे? वो आता है साइबर सिक्योरिटी में, बट क्लाउड का जिसका नॉलेज है वो क्लाउड सिक्योरिटी को समझना उसके लिए बहुत आसान है। ओके गाइस, तो हम लोग ये पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद कुछ नहीं है, मॉड्यूल रैप अप करना है। और ये की टेकवेज एक बार देख लो, हैव ए लुक फॉर की टेकवेज सेक्शन 4 का। सर ये पीडीएफ मिल सकता है क्या? नहीं। ये तो पीडीएफ है ना तुम्हारा, इसमें होगा तुम लोग का एलएमएस में। देखो ये स्टूडेंट गाइड वगैरह में दिया रहता है। तो मैंने देखा वीडियो है। स्टूडेंट गाइड में हर एक मॉड्यूल का दिया तो रहता है। स्टूडेंट गाइड में मिलता है ये वीडियो और ये पीडीएफ। हाँ हाँ वीडियो में दिया हुआ है। हाँ। हाँ, वहां से एक्सप्लोर करो। ये तो टीचर, ये है ना एजुकेटर का फाइल है, ये हम लोग शेयर नहीं करते बच्चों को। तुम लोग के लिए मिला है, तुम लोग स्टूडेंट गाइड को रेफर करोगे, वहां पे सब दिखेगा। वीडियो में भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन किए हैं एक्सपर्ट लोगों ने। वो सब AWS के बहुत एक्सपर्ट हैं, वो कई सालों से काम कर रहे हैं उसमें। वो सब वीडियो तुम लोग वॉच करना, अच्छा अच्छा चीजें समझने को आएगा तुम्हें। ओके, तो दैट मच फॉर टुडे। सर ये मॉड्यूल 5 है ना? नहीं, ये मॉड्यूल जो है मिक्स मॉड्यूल मैंने तुम लोग को कराया है, जिसमें बेसिक फंडामेंटल AWS की चीज़ों को समझाने के लिए। अभी मैं मॉड्यूल जो है, अब तुम लोग का, हाँ एक चीज़ और बोलना था। तो तुम सर लोग फिर हम स्टूडेंट, लोग को कैसे पता चलेगा कि हम लोग के कौन से मॉड्यूल में है ये? देखो तुम लोग को कैसे करोगे, देखो मैं तुम लोग को बता देता हूँ। जस्ट सी, तुम लोग जब जाओगे ना अपने कोर्स में जाना, कहाँ से कंप्लीट करोगे, जस्ट लेट मी शो यू। जैसे आर्किटेक्चर में गए, क्लाउड आर्किटेक्टिंग, तुम लोग मॉड्यूल में जाना। जो जो लैब मैंने करा दिया है ना, उसके उसके स्टूडेंट गाइड को खत्म करके नॉलेज चेक वगैरह सर सब मॉड्यूल 4 तक तो हो गया है। हाँ मॉड्यूल 4 सुनो, मॉड्यूल 1 का हुआ था, मॉड्यूल 2 का मैंने लैब तुम लोग को ये मॉड्यूल 2 का बोला था कि स्टूडेंट गाइड को रेफर करना। ये सब बेसिक फंडामेंटल है आर्किटेक्चर, ये बहुत सारी चीजें मैं तुम लोग को पढ़ा दिया हूँ। थ्योरी में मैंने ये डिस्कस किया। सिक्योरिंग एक्सेस भी हमने IEM लैब किया था, तो सिक्योरिटी के बारे में भी बहुत सारे हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो मॉड्यूल 3 का नॉलेज चेक दे देना तुम लोग। मॉड्यूल 3 हो गया है, तुम लोग लैब भी कर लियो, तो मॉड्यूल 3 का नॉलेज चेक दे देना। ये तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कब दे रहे हो, कैसे दोगे, ये सब तुम्हारे ऊपर है। क्योंकि नॉलेज चेक अगर नहीं दोगे ना, तो फिर सर्टिफिकेट तुमको एंड में कोर्स कंप्लीशन वाला सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और जो लोग ग्लोबल एग्जाम के लिए सोच रहे होंगे, तो उनको फिर डिस्काउंट वाउचर भी नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग को एग्जाम देना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट गाइड के पूरे हर पार्ट को पढ़ना अच्छे से। स्टूडेंट गाइड में पूरा डिटेल में जो मैंने PPT जैसा दिखाया ना, वो पूरा डिटेल में वहाँ पे स्टूडेंट गाइड में सब मेंशन किया गया है। ये भी स्टूडेंट गाइड, एडिंग स्टोरेज लेयर S3 के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जहाँ पे हमने चैलेंज लैब किया था। तो मॉड्यूल 4 वही हो गया है हमारा। मॉड्यूल 5 में मैंने इसमें कुछ डिस्कस किया था क्या, कैफे ये सब हुआ था क्या? डायनेमिक वेबसाइट नहीं हुआ है ना, सर राइट? डायनामिक नहीं हुआ था, हाँ, ये यहाँ से गाइडेड हम वाला लोग हो गया था। हाँ तो हम लोग गाइडेड वाला हुआ है। गाइडेड वाला हुआ है, चैलेंज वाला करेंगे, हाँ, ठीक। Amazon इलास्टिक फाइल सिस्टम। ठीक है, गाइडेड हो गया है, तो हम लोग चैलेंज करेंगे। तब तक तुम लोग मॉड्यूल 5 कंप्लीट करते चलो। मॉड्यूल